Good morning, dear students. After studying about biomass and biogas in the previous lecture, let us study one more form of energy, that is wind energy. Dear friends, in previous class, that is class 9, we studied that unequal heating of land mass and water bodies by solar radiation generates air movement and causes wind to blow. हाई प्रेशर लो प्रेशर जो एरिया प्रोड्यूस होता है उस वजह से it facilitates the motion of air, which is known as wind. So this kinetic energy, when anything is in motion, we have studied even in 9th standard that when anything is having motion, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है. So as the wind also has motion, it has kinetic energy. So this kinetic energy of wind is used or utilized to do work. This energy is harnessed or is used by windmills, and in the earlier times it was done to do some mechanical work. यानी पहले के ज़माने में आप देखोगे तो जो पुराने वेल्स होते हैं उसके ऊपर एक विंडमिल जैसा स्ट्रक्चर लगाया होता है और जैसे ही विंड से वो रोटेट करता है, राइट, it was used to draw the water out of the well. So that was some kind of mechanical work. तो उसके एग्जांपल्स भी हमको यहाँ पे दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल इन अ वाटर लिफ्टिंग पंप यही करता है कि जब विंड एनर्जी से जो उसके ऊपर का जो सर्कल जो चक्कर होता है जब वो रोटेट करता है, सो यूजिंग दैट एनर्जी वी कैन पंप द वाटर आउट फ्रॉम वेल. Nowadays these windmills are used for generating electricity. In the previous slides we saw that the motion of flowing water in the case of dams is used to run the turbine. जब वो टर्बाइन रोटेट होती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पे प्रोसेस सेम रहेगा, बट यहाँ हम फ्लोइंग वाटर की जगह फ्लो ऑफ एयर दैट इज विंड का यूज करेंगे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड सच अरेंजमेंट is known as a windmill. So what is a windmill? A windmill essentially consists of a structure which is similar to a large electric fan that is erected at some height on some rigid support. तो करते क्या है? To generate electricity, the rotatory motion of the windmill is used to turn the turbine of the electric generator. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम डैम का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि हम वाटर को हाइट पे स्टोर करते हैं, एंड एज वी ओपन द गेट्स वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग. सो व्हेन वाटर इज फ्लोइंग इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी. दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन सो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ flowing water we are using wind. So the motion of the wind is used to turn the turbine of the electric generator, which in turn produces electricity. Now the problem over here is that the output or the amount of electricity generated by a single windmill will be very very small and it can't be used for commercial purpose. हाँ, आपको अपने घर पे थोड़ा सा काम करना है, लाइट चलानी है, पंखा चलाना है, तो वो एक विंडमिल से काम चल जाएगा. बट इफ यू वांट टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कमर्शियल पर्पस, कि आपके पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी है कि जिसे आप दूसरों के घरों में पहुंचा सके, राइट, देन सिंगल विंडमिल इज नॉट इनफ. क्या करते हैं? अ नंबर ऑफ विंडमिल्स आर इरेक्टेड और कंस्ट्रक्टेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया एंड द एनर्जी इज प्रोड्यूस. तो ऐसी जगह जहां पे नंबर ऑफ विंडमिल्स ऐसे लगाई हुई होती है उसे कलेक्टिवली हम विंड फार्म बोलते हैं. सो विंड फार्म इज नथिंग बट अ लार्ज एरिया which has a large number of windmills that are erected over that specific area. The energy output of each windmill, तो each windmill का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट, उसको एक साथ जोड़ के we can produce electricity on larger scale
which can be used commercially. Now we are going to learn about two very important questions: advantages of wind energy as well as limitations of wind energy. तो ये पॉइंट्स आपको ठीक से याद रखने हैं. एडवांटेजेस में हम क्या लिख सकते हैं? दैट इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली, एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी. उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी फ्यूल, राइट? जब हम थर्मल एनर्जी की बात कर रहे थे then we were burning coal or some fossil fuel which in turn generates smoke and ash. But when we are talking about wind energy, उसमें कोई fuel का use नहीं होता है, right? So it is environment friendly, does not cause any pollution. Second, it requires no recurring expense for production of electricity. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको फ्यूल का खर्चा वगैरह नहीं करना पड़ता, so उसकी एक रिकरिंग कॉस्ट नहीं होती है. हाँ, वन टाइम एक लार्ज कॉस्ट होती है, राइट? बट रिकरिंग कॉस्ट कि भी हर महीने आपको विंड, एक बार आपने विंड मिल जो एस्टैब्लिश कर दी तो हर महीने विंड मिल एस्टैब्लिश करने का जो खर्चा हुआ वही खर्चा आपको रिपीट नहीं करना पड़ता. यस, यू हैव सम एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग बट दैट एक्सपेंस इज नॉट दैट मच लार्ज. You can also use that wind energy, वो है जो it's a kind of renewable source of energy, वो कभी exhaust नहीं होगी. So these are the certain advantages that are associated with wind energy. Now let us study about certain limitations. उसके advantages भी है, साथ में उसके थोड़े से limitations भी है. So what are the limitations? Wind energy produce करनी है तो उसका सबसे पहला necessity क्या होगी? There should be wind. Okay. So the first point is that wind should be blowing for the greater part of the year. आपने बड़ा सा wind farm erect कर दिया, right? But it has been erected at such a place where wind is blowing very very less, or it is only blowing for 1 or 2 months. तो ये practical नहीं होगा. It won't be feasible, economically feasible. So wind energy has to be established at such a place where wind is blowing for the greater part of the year. यानी कि throughout the year you should have the regular supply of wind. Wind भी एक स्पेसिफिक स्पीड से होगा तो ही वो जो रोटेट करने के उसके जो पंखे होते हैं, राइट, उसकी जो ब्लेड्स होती हैं उसको रोटेट करने के लिए there should be some minimum amount of speed. तो सिर्फ लाइट ब्रीज ब्लो कर रही है तो उससे भी विंड एनर्जी प्रोड्यूस होने में दिक्कत आएगी. उसके लिए विंड की एक स्पेसिफिक स्पीड होनी चाहिए. So this question might be also asked in a short question. So remember that minimum wind speed of 15 km per hour is required to rotate the turbine with the required speed. तो टर्बाइन अगर इनफ स्पीड से रोटेट करेगी तो ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. तो उस टर्बाइन को रोटेट करने के लिए तो विंड ब्लो कर रहा है उसकी मिनिमम 15 से ज्यादा है, दैट्स वेल एंड गुड, बट द मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड इज 15 km per hour. So if the speed of wind is less than 15 km per hour, then it won't be able to rotate the turbine properly at the required speed. So it will have problem for generation of electricity. तो हमने दो पॉइंट्स अब तक डिस्कस किए. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट wind should be blowing at the greater part of the year. Throughout the year you should have wind. And second, the minimum required speed of the wind should be 15 km per hour. So the location should be such that the wind keeps on blowing at a speed greater than 15 km per hour for the greater part of the year. Third point, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, राइट, वो डायरेक्टली तो यूज होगी नहीं बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग इट कमर्शियल बेस. तो उसको स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज चाहिए. Okay, so the third point is that it should have some backup facilities like storage cells. So that is point number third. Fourth point, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सिंगल विंड मिल जो होती है वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती जिसे हम कमर्शियली यूज कर सकें. So we have to establish a wind farm. So for establishing wind farm, we have to establish many windmills, keeping enough space between them. दो windmills के बीच में आपको enough space भी रखनी पड़ेगी, दोनों को आप साथ साथ में नहीं रख सकते. So as a reason, the requirement of land
is quite large. So again, this question might be asking a short question. You have to remember this, that if you want to generate 1 megawatt electricity, okay, 1 MW means 1 megawatt electricity generation, you should have at least 2 hectares of land. अगर आपके पास 2 हेक्टर लैंड है तभी आप वैसा विंड फार्म एस्टैब्लिश कर सकोगे जो 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके. Next point, as I said that you require a large amount of land as well as to establish huge windmills in large number requires lots of money. So initial cost of establishment is very high. जब आपको विंड फार्म बनाना है तो जो आप पहले साल में जो बनाने के प्रोसेस में जो खर्चा करोगे, that will be quite large because you will require to buy a large piece of land as well as establishments of these windmills in large number is also very, very costly. So last point now, as the blades and tower are exposed to weather, they are made up of metal, right? And so whenever anything is exposed to metal, it undergoes corrosion. तो कोरोजन का प्रॉब्लम रहता है, फिर वो फ्रीली रोटेट करे, उसकी वजह से अंदर बेरिंग्स वगैरह लगाना पड़ता है, उसका ऑयलिंग करना पड़ता है. सो वेदर में इन सब चीजों को ठीक से रखने के लिए आपको एक मेंटेनेंस कॉस्ट करनी पड़ती है, राइट? सो इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस. सो दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी. पहला पार्ट, wind should be blowing at greater part of the year. Second, minimum speed required is 15 km/h. It should have some backup facilities. Next point, it requires large amount of land. Next point, initial cost of establishment is very high. And the last point, that is the blades as well as the whole tower itself is exposed to weather. It requires high maintenance. So, dear students, both these questions are very, very important. Advantages of wind energy as well as limitations of wind energy. So after wind energy, now we are going to learn about another non-conventional source of energy, that is solar energy. We know that sun has been radiating a huge amount of energy at the present rate for nearly 5 billion years. और हमने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा भी है कि सन इज एट इट्स हाफ एज, यानी कि वो 5 बिलियन ईयर से सनलाइट दे रहा है. इट विल बी गिविंग द सनलाइट फॉर मिनिमम नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स मोर. बट ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द आउटर लेयर ऑफ अर्थ. उसमें से नियरली हाफ ऑफ इट इज एब्सॉर्ब while passing through the atmosphere and the rest reaches the earth's surface. So even if the energy which is coming from the sun, only a very little part reaches the earth, but that much part is also sufficient to maintain the life on earth. तो कहां कहां पे सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं? तो जो पहला पॉइंट है सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, दैट इज सोलर कुकर. वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर्स आल्सो दैट ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब्स मोर हीट. दैट्स व्हाई समर में अभी हम कभी ब्लैक कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि ब्लैक कलर जो होती है या ब्लैक कलर की कार भी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है. क्यों? बिकॉज इट हैज द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मोर हीट. तो यहाँ पे तो हमको क्या करना है, सोलर कुकर में सनलाइट को यूज करके खाना कुक करना है. वी हैव टू कुक द फूड. ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द बॉडी of the solar cooker of black color. Why? Because black surface absorbs more heat compared to white or any other surface, right? So solar cookers and solar heaters use this property. They are made up of black color so that they absorb more heat of the sun. तो solar cooker और solar heater दोनों में हम यूज किसका करते हैं? The energy that we receive from the sun. तो हमने देखा कि सोलर कुकर में हायर टेम्परेचर के लिए हमारा जो इनर सरफेस होता है उसको ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं सो दैट इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट. टू अटेन ग्रेटर टेम्परेचर सम मोर स्टेप्स आर आल्सो टेकन. क्या करते हैं? सम सोलर कुकर्स अचीव हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर्स टू फोकस द रेज ऑफ सन. सो डायरेक्टली दिस मिरर विल ट्रांसफर द सोलर हीट ऑन द फूड टू बी कुक्ड. एज अ रिजल्ट द फूड गेट्स कुक्ड फास्टर.
ओके, वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या करते हैं कि जो प्लांट है उसको हम कवर कर देते हैं बाय बॉक्स विच इज मेड अप ऑफ ग्लास, एंड ग्लास हैज द एबिलिटी टू ट्रैप द हीट। ओके, सो द मिरर इन द ग्लास will trap the heat of the sun in the cooker which is used to cook the food. Now जो सोलार सेल्स होते हैं, ओके, आपने देखा होगा हाईवेज पे, तो जो हाईवेज पे जो लाइट लगी हुई थी उसके उस पे सोलार पैनल्स होते हैं। तो ये सोलार पैनल क्या करती है? द वर्क डन बाय द सोलार पैनल्स is to convert the solar energy into electrical energy, which in turn is used to light the bulbs as well as any arrangement on the highways to light up during the dark time. Now, the limitation of using solar energy for in this way is that this solar energy has to be converted into electricity for solar cells. तो जो solar cell होता है, right, a typical cell develops a very short voltage of 0.5 to 1 volt and can produce only a less amount, that is 0.7 volt of electricity when exposed to sun. तो हम क्या करते हैं, जैसा कि विंड एनर्जी के दौरान हमने देखा था कि सिंगल विंड मिल से काम नहीं बनता, सो वी टेक a group of windmills and form a large wind farm. तो यहाँ पे भी हम छोटे छोटे सोलार सेल्स को कंबाइन करके जो लार्जर पार्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं सोलार पैनल, that can deliver enough electricity for practical use because single cell can't generate more electricity. आपने देखा होगा कि जो कैलकुलेटर्स होते हैं, राइट, उसके ऊपर भी एक सिलिकॉन का सोलर सेल का पैनल होता है, तो उससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कि जिससे आप कैलकुलेटर में डिजिट्स को देख सको, उसका डिस्प्ले चल सके, राइट। यू कांट यूज दैट इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अ बल्ब और रन अ फैन। सो फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस many solar cells are combined with each other and solar panels are formed. So here you have to remember for short question that a typical cell develops a voltage between 0.5 to 1 volt and it is capable of producing electricity around 0.7 volt when exposed to sun. तो जैसा कि हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखे विंड एनर्जी के, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडवांटेजेस दैट आर एसोसिएटेड विद सोलर सेल्स। तो हमने विंड मिल में देखा था कि वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है, उसमें जो ब्लेड्स वगैरह होता है वो मूविंग पार्ट्स है, तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। सोलर सेल में ये लिमिटेशन नहीं रहता, राइट, इट रिक्वायर्स अ वेरी लिटिल मेंटेनेंस। व्हाई? बिकॉज़ इट डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स। विंड मिल में अगर उसकी बेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया देन इट वोंट बी एबल टू रोटेट फ्रीली, और अगर वो रोटेट नहीं करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। सोलर सेल में ऐसा कोई मूविंग पार्ट होता ही नहीं है, राइट। सो इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस कंपेयर्ड टू द विंड मिल्स, राइट। इट कैन ऑल्सो वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरली विदाउट द यूज ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस। जैसा कि सोलर कुकर में हमने देखा था कि मिरर्स वर यूज्ड टू फोकस द लाइट, सोलर सेल्स में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर एडवांटेज इज दैट दे कैन बी सेट अप इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल हैमलेट्स। हैमलेट्स यानी दे आर स्मॉल विलेजेस, राइट, जिसके जो विलेज इतने छोटे होते हैं कि उसमें 10-15 घर होते हैं, तो जो 10-15 घर वाली छोटी सी लोकेलिटी होती है उसको हैमलेट्स बोलते हैं। तो ऐसी हिली रीजन पे जो छोटे छोटे गांव होते हैं जहां पे 10-15 घर रहते हैं, तो वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहां पे आप पोल्स वगैरह इरेक्ट नहीं कर सकते और वहां पे कंटिन्यूअस लैंडस्लाइड्स वगैरह भी होती है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेंड इलेक्ट्रिसिटी ओवर दोस पार्ट्स। ऐसे रिमोट और इनएक्सेसिबल हैमलेट्स और विलेजेस होते हैं, राइट, जहां पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, पावर लाइंस की, ट्रांसमिशन की लाइंस भी वहां पे आप लगा नहीं सकते, और लगाना चाहो तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ऐसी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए द बेस्ट ऑप्शन
is the solar cells. यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे भी कोई फ्यूल यूज नहीं होता है, तो डज नॉट कॉज एनी अमाउंट ऑफ पोल्यूशन. एंड solar energy is renewable source of energy. It won't get exhausted at least for next 5 billion years. Okay, so these are the certain advantages that are associated with solar cells. After advantages, now we will look at disadvantages. तो जो सोलर सेल्स हैं उसको बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज करते हैं. नाउ अ गुड थिंग इज दैट सिलिकॉन इज अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट इन नेचर, अबंडेंट रहता है, ठीक है. बट टू मेक सोलर सेल्स, ये जो नॉर्मल सिलिकॉन है, जो इजीली अवेलेबल सिलिकॉन है, वो यूज नहीं चलता. वी हैव टू यूज सम स्पेशल ग्रेड, जो हाई ग्रेड हाई क्वालिटी का सिलिकॉन होता है, उसी को यूज कर सकते हैं. सो सिलिकॉन इज अबंडेंट, बट द स्पेशल हाई ग्रेड सिलिकॉन which is used for making solar cells is very very limited. तो पहला डिसएडवांटेज ये रहेगा कि द स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन that is used for making solar cells is limited in very less amount in nature. Second, the entire process of manufacture is very expensive, and to add the cost, हमने देखा था कि एक सिंगल सोलर सेल तो ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता. So we have to take many solar cells to connect these solar cells with each other. Silver is used, and we know that silver is very costly metal. तो वैसे ही ये जो स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन से उसका मैन्युफैक्चर करना कॉस्टली है, और जब आप उसको कनेक्ट करते हो यूजिंग सिल्वर, so it adds up to the cost. In spite of the high cost and low efficiency, solar cells are used for many scientific and technological applications. जैसा कि जो सैटेलाइट्स को हम भेजते हैं, वेदर सैटेलाइट हो या स्पाई सैटेलाइट हो या कोई भी सैटेलाइट्स होती है, राइट. सो दे हैव डिफरेंट पार्ट्स इन इट. सैटेलाइट्स में कैमरास होते हैं, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं. सो ऑल दिस रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, राइट. तो सैटेलाइट तक आप वायर तो लेके जा नहीं सकते कि भाई चलो अर्थ से हम सैटेलाइट तक वायर से कनेक्शन देके उसको चालू रखेंगे. सो इन सैटेलाइट्स, ओके, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर सेल्स. तो जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके सरफेस पे सोलर सेल्स लगाए होते हैं जो सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, राइट, टू ऑपरेट द गैजेट्स व्हिच आर देयर इन द सैटेलाइट्स लाइक कैमरा, कंप्यूटर्स, एक्सेट्रा. रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम और टीवी रिले स्टेशंस इन रिमोट लोकेशंस आल्सो यूज सोलर पैनल्स फॉर देयर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर्स एंड मेनी टॉयज आर आल्सो फिटेड विद सोलर सेल्स. Nowadays you might have seen that solar panels are mounted on rooftops to generate electricity, right? So the domestic use of solar cell yet is limited due to its high cost. But as we are moving towards more and more non-conventional ways of generating electricity or for generating energy, right? उसका use है वो धीरे धीरे increase होने लगा है. Yes, it's not up to the mark, right? Domestically solar cells उतने use नहीं हो रहे, but as you can see from your surrounding also that now many houses are going for solar cells because government also gives certain types of subsidies, so the cost of it comes down and electricity can be generated without burning fossil fuels and causing minimum harm or damage to the environment. So from today's lecture, from today's slides, many important questions will be there. So the list of questions I will send separately in the group. So you have to write down this question answers in your notebook. So we'll continue with the chapter in the next slides. Till then, goodbye and take care.